Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Patel Kishan and right now I am pursuing my MBBS at BJ Medical College, Ahmedabad. So in this video we will be talking about kinematics and यहाँ पर मैंने जो नोट्स बनाए वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन दोनों के साथ में बनाए बट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनमें दो अलग अलग पार्ट में अपलोड करूँगा कि दोनों चैप्टर्स को अलग से अपलोड करूँगा. सो इन स्टार्टिंग ऑफ दिस यहाँ पर डेफिनेशंस दिए कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, देयर बेसिक फार्मूला एंड यहाँ पर फिर मैंने फार्मूला लिखा है कि हाउ टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड. तो इन जो फार्मूलाज है उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आते हैं नीट में. लाइक ऐसे IMP एक केस बना देते हैं. फॉर एग्जांपल बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस with velocity v1, v2, v3, v4, something like that till vn. So they will be asking ki what is the average speed of that velocity body. So how to calculate that average speed. उसके लिए जैसे मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो लेट्स सी कि हाउ वी शुड कैलकुलेट दैट. तो उसके लिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी वुड बी n into d till n times. So n into d would be the total distance and total time. How to calculate the total time here? So time for this section would be d by v1. For next section it would be d by v2 till d by vn, and here d would be taken common and the rest of the formula would be remaining is like n by 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3, something like that till 1 by vn. सो ऐसे करके ये फार्मूला आता है एंड दैट इज़ आई हैव रिटन इन दिस बिलो. तो फिर दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट विच दे आस्क. तो उस टाइप के कुछ केसेस है जो मैंने यहाँ पर लिखे. सो अनदर केस इज समथिंग लाइक दिस एंड थर्ड केस इज देयर. आप देख लेना एक बार. एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो हाउ टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इट इज़ dx by dt which is also called tan theta, or it is also called slope of x versus t graph. Here what is x? It is displacement in case of velocity, and if you are asked about speed then kindly consider this x as the distance. So वहाँ पर speed के लिए आप displacement नहीं ले सकते because there comes total distance upon total time. And you know कि how to differentiate all, and that is a part of basic maths. सो आप अपने वो एक बार देख लेना हाउ टू कैलकुलेट सम थिंग्स बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. इट वुड हेल्प अ लॉट इन दिस चैप्टर्स. सो अनदर कॉन्सेप्ट विच हैज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक मैथ्स इज हाउ टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इट इज़ नथिंग बट dv by dt equal to tan theta or slope of v versus t graph. So this is how to find instantaneous acceleration, and here there is a formula how to find average acceleration of a body. Now let's see some general graphs. तो क्वेश्चन कई बार ग्राफ्स के ऊपर से आते हैं. इफ़ यू आर गिवन समथिंग लाइक एक्स वर्सेस टी ग्राफ, तो उसके ऊपर से आपको पूछ लेंगे व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी और व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी और समथिंग लाइक दैट कि परसेंटेज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इफ़ उनको कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने दे कैन यूज़ दिस ग्राफ्स. सो वैसे तो बेसिक्स ही होते हैं. द मोस्ट कॉमन ग्राफ इज़ y इज इक्वल टू mx plus c which looks like this, and some another formulas are y proportional to x or this something long formulas like this हो सकते हैं ऐसे. तो बस आप एक बार देख लो कि कौन से फंक्शन के लिए किस टाइप का कर्व वेरी करता है. लाइक इट इज़ 1 by x which is proportional to y, then your curve would be like this. And if it is 1 by x square, so you would be saying that both the curves are similar, but when you will plot the graphs on some magnitudes, that will be the difference in those values. Like यहाँ पर there is a small gap and यहाँ पर there is a big gap. That is a layman term कि यहाँ पर छोटी gap है वहाँ पर बड़ी gap है. It is just a game of magnitude कि here it is x, here it is x square. So nothing much to worry here, and some other graphs are like this. बस आप एक बार देख लो. And then the main thing of this chapter which starts here is equations of motion when acceleration is constant. तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड 9th में तो बेसिक
जो भी तीन इक्वेशन थी वो हमने देख ली है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस वाला और v स्क्वायर वाला, ये 3 फार्मूलाज थे बेसिक। तो बस वही है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन ओनली यू कैन अप्लाई ऑल दिस थिंग्स। देन व्हाट टू डू इफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेरिंग विथ टाइम और विथ पोजिशन और समथिंग लाइक दैट, then to find velocity you will have to use the concept of differentiation and integration। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि if acceleration is constant you are free to use these formulas। and ये जो s nth वाला फार्मूला है वो और कुछ नहीं कि they are something if you are asked like कि what is the displacement of body in third second of the journey। so third second का मतलब क्या हुआ, that body has covered first second, सेकेंड सेकेंड देन थर्ड सेकेंड। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का है दे आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसके लिए यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फार्मूला एंड इफ़ यू डोंट वांट टू मग अप दिस देन यू कैन यूज़ दिस बेसिक फार्मूला कि आप यहाँ पर टाइम को थ्री सेकेंड्स पे रख लो एंड देन 2 सेकेंड्स पे रख लो और उनका डिफरेंस निकाल लो, इट विल गेट यू द सेम आंसर। और दिस इज़ वी आर टॉकिंग फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर कहीं बॉडी का फ्री फॉलिंग हो रहा है या फिर ऊपर से दे आर समथिंग थ्रोइंग द बॉडी और समथिंग लाइक दैट, तो आप ये वाले फार्मूलाज यूज़ कर सकते हो जहाँ पर एक्सेलरेशन के जगह पर आप -g लिख सकते हो। लाइक हियर आई हैव कंसिडर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव इन अपवर्ड्स। तो जो हमारी ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होती है, डेट्स वाई आई विल बी पुटिंग -g in place of acceleration in all those formulas and I'll be getting these formulas। Now there is some special case, if u is equal to 0 then these things would be there, if v is equal to 0 so this you can calculate height and all। तो आप बेसिकली यहाँ पर ही वो चीज़ रख दोगे, you will get this all these 3 formulas, there is nothing much good। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। तो कोई क्वेश्चंस ऐसे स्पेशल केस है, दिस इज़ ऑल्सो स्पेशल केस, इफ़ यू वांट टू मग अप देन यू कैन एंड देर आर सम लॉजिक्स, डेफिनेटली देर विल बी डेरिवेशंस ऑफ दिस फार्मूला। so I am not taking those in these short notes, if you want that you can get your notes from your teacher or something like that, they will definitely get you the derivations of this। तो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि देर इज़ अ ट्रेन गोइंग विथ सम वेलोसिटी, लाइक इट ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, देन पॉइंट बी ऑफ दैट train has velocity this and point A of that train has velocity VA, then what would be the velocity of midpoint of train? Then you can count that midpoint velocity by this formula and this is some basic thing कि it is something related to retardation कि आपको कितना टाइम कितना डिस्टेंस लगेगा, it is basic thing, बस आप देख लेना एक बार। दिस इज़ ऑल्सो सिंपल केस, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वॉट इज़ दैट। इट इज़ रिटन इफ़ अ पार्टिकल एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 इज इक्वल टू t विथ कॉन्स्टेंट रेट अल्फ़ा। ये कह रहा है कि v वर्सेस t ग्राफ इसमें मैंने ड्रॉ किया है सो दैट यू कैन गेट कि वॉट इज इट इज़ ट्राइंग टू से। तो t1 टाइम के लिए अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फ़ा एंड अटेनिंग अ मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax, और उसके बाद फॉर t2 टाइम दैट बॉडी इज रिटार्डिंग एट द रेट ऑफ बीटा। तो Vmax अटेन करने के बाद सडनली दैट बॉडी इज अप्लाइंग ब्रेक्स एंड इट्स हैविंग द रिटार्डेशन एज बीटा फॉर टाइम t2। देन क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड इन दिस केस, व्हाट वुड बी द ए इफेक्टिव, कि यहाँ पर एक तो पहले एक्सेलरेशन किया फिर रिटार्डेशन किया, सो व्हाट वुड बी द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ होल जर्नी, या फिर व्हाट वुड बी द एवरेज वेलोसिटी। सो आप वो सारी चीज़ें आप इन फार्मूलाज से फाइंड कर सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे मैंने बताया डेरिवेशंस चाहिए तो मैंने वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए, बट यस डेफिनेटली ऑल दिस फार्मूलाज हैव देयर डेफिनेशंस। उसके बाद आता है गैलीलियो रेशियो एंड टाइम रेशियो, बहुत ही सिंपल चीज़ है। Galileo ratio is something like कि distance travelled in a same time interval are in the ratio of odd numbers, कि जैसे यहाँ पर डायग्राम से बताया S1 S2 and S3 would be in same ratio of 1:3:5।
time ratio, it is the something like that कि same distance traveled with constant acceleration, then the ratio of those times would be equal to this value, like root 1 minus root 0, that is 1, is to root 2 minus root 1 is to root 3 minus root 2, or something like that you can find from this. And this is a formula, this is a special case. So, this body is being thrown down with velocity u, and this guy throws a ball, it drops a ball basically, I would say, that is u equal to 0, and this guy throws the ball in upward direction with velocity u. So time taken by ball in those different cases are t1, t and t2 respectively. Then what would be the relation between them? So relation is like t is equal to under root t1 t2. एंड इसका जो मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने देखा था वो बेसिकली एक नीट प्रेप का टेस्ट था, तो मैंने वहाँ से देखा था और मैंने वहाँ से अपना डेरिवेशन भी सीखा था, बट यहाँ पर जस्ट रिवीजन के तौर से मैंने सिर्फ फार्मूला लिखा है. सो इफ़ यू आर गेटिंग सम केस लाइक दिस, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फार्मूला एंड गेट योर आंसर्स. तो जैसे हमने आगे अभी गैलीलियो रेशियो देखा, तो जितनी भी बॉडीज़ होती है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के इफेक्ट से चलती है, दे फॉलो दैट सिस्टमेटिक नेचर ऑफ वर्टिकल मोशन. फॉर एग्जांपल कि एक बॉल था, हमने वहाँ वो बॉल को ऊपर फेंका, एंड देयर वुड बी द ग्रेविटी जी एक्टिंग ऑन इट. सो बॉडी वुड बी ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस इन लाइक समथिंग दिस डायरेक्शंस. So ratio of this those displacements at different level are given like this. So it is basically relying on the Galileo ratio. That's why I mention it here. आप एक बार पढ़ लोगे तो you will definitely get about it कि what I am trying to say. And जो हमने symmetry की बात की कि if a ball is projected like this, then the velocity of ball at B would be same as velocity of ball at D. Velocity of A and E would be equal. और हाँ, ये सारी चीज़ हम तब मीन्स प्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस. वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है, सो हम माइनर चेंजेस आ जाते हैं वेलोसिटी में, बट हियर इन दिस चैप्टर वी आर नेग्लेक्टिंग दैट एयर रेजिस्टेंस. सो सिमेट्री और जो भी हाइट है, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी वुड बी एट सेम हाइट, देन देयर वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट वुड बी द सेम. तो जस्ट कुछ रिलेशंस है, उनके फॉर्मूलाज भी मैंने यहाँ पर लिखे, आप वो एक बार देख लेना. एंड द फाइनल थिंग विच कम्स इन दिस चैप्टर इज़ रिलेटिव मोशन, कि देर इज़ अ बॉडी वी गोइंग इन दिस डायरेक्शंस एंड दैट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर दिस. सेम वे देर इज़ अनदर बॉडी नेम्ड बॉडी ए एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर दिस. तो उनका रिलेटिव मोशन, what are the relative velocities, acceleration और displacement, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. So you would be just applying this concept and you will be getting your answers. And simple basic equations of motion would also be modified here in this relative motion concept. And there is a upstream and downstream question here. There is that is this thing basically here is the river, and a person is swimming with velocity v in the direction of flowing of water, which is flowing with velocity of u. Then what would be the actual velocity of man when we see from outside? That is ये केस आप समझ लो कि you are standing here and some person is swimming with velocity v in river which is having velocity u in this direction. तो आपको मैन की जो भी पर्सन है उसकी वेलोसिटी आपको कैसी दिखेगी? इट वुड बी बेसिकली हिज वेलोसिटी इन रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर. सो यू विल बी गेटिंग हिज वेलोसिटी वुड बी v प्लस u, दैट इज ही वुड बी अपियरिंग कि ही इज स्विमिंग फास्टर, दैट इज ही इज स्विमिंग फास्टर देन वेलोसिटी v. दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन डाउनस्ट्रीम. And in upstream bus, that river velocity would be negative in this case because the direction is taken positive in direction of swimming. तो आप उनसे बस velocity of man and time you can get it out. This is another question, that is a case based question of escalator, and I am pretty sure आपको वो पता होगा.
देन मैंने ये लिखा था कि वाटर्स प्रॉब्लम एंड जगलर्स प्रॉब्लम. इफ़ यू वांट टू रीड दिस थिंग देन आप ये रीड कर सकते हो, बाकी इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. सो पर्सनली इफ़ यू आस्क मी आई हैव जस्ट स्किप दिस थिंग बिकॉज रिसेंटली इन फिजिक्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. सो आई हैव केप्ट देन एंड at the last. So this was all about the overview of that chapter, motion in straight line. In next video we will be talking about vectors, so it comes under the motion in plane, and I will be uploading this notes on my Telegram channel, so please join and subscribe to my YouTube channel so that you don't miss out any further videos. Thank you.